رونق ٹائمز نیوز نیٹ ورک، ہر پل آپ کے ساتھ۔ رونق ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے روبرو کرانے جا رہے ہیں جس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور جو اب کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دراصل یہ نوجوان پچھلے کئی سال سے محکمہ سیریکلچر میں بحیثیت کیجول لیبر کام کر رہا ہے۔ جب متعلقہ محکمے نے کیجول لیبرز کا ایک لسٹ تیار کیا یا آن لائن کیا، اس میں اس شخص کا نام کہیں پر موجود نہیں تھا۔ اس نوجوان کا نام شبیر احمد ہے اور اس کا تعلق گرورہ بانڈی پورہ سے ہے۔ 2009 سے لے کر سارے ایسے ڈاکومنٹس یا دستاویزات اس کے پاس موجود ہیں، اس میں چاہے اٹینڈنس ہو، بینک میں سیلری کی ڈیٹیل ہو یا پھر دوسرے دستاویزات ہوں۔ شبیر احمد کا نام کیجول لیبرز کی لسٹ سے غائب کیوں ہے؟ اس کے لیے اس نے اپنے دفتر، لیفٹننٹ گورنر کے سابقہ ایڈوائزر، متعلقہ محکمے کے ڈائریکٹر اور سابق MLA کے ساتھ کئی بار رابطہ قائم کیا، لیکن اپنا نام اس لسٹ میں درج کرانے میں کامیاب نہیں ہوا، جس میں ایسے بھی کئی افراد کے نام موجود ہیں جو محض کئی سال سے اس محکمے میں بحیثیت کیجول لیبر کام کر رہے ہیں۔ شبیر احمد ٹین کے ایک شیڈ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے آپ کو شبیر احمد سے ملواتے ہیں۔ گرور پٹھان کو روزان گئی 2007 پہ کران کیجول لیبر کہ 2007 پہ ووت امس ونان کہ مطلب گورمنٹ لسٹ مونگ کہ ریگولر کر تمہ سات کرم تمہ سات وونم کہ بہ کر پتہ کور نہ کینٛہہ بلکہ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ کہ مےٚ چھِ ییٚتہِ شاٹ بہٕ شاٹہِ منٛز پانہٕ بسان زندگی گُزاران بلکہ مےٚ نِش چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ تہٕ تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ تمہِ پتہٕ گوٚوُس ڈایریکٹر صٲبس بہٕ تمہِ پتہٕ گوٚوُس گورنر بشیٖر خۄشید صٲبس بہٕ یُس گورنر بشیٖر چھِ تٔمِس نِش تہِ تمہِ پتہٕ چھِ میل ڈایریکٹر صٲبس کران بیٚیہِ دُبارٕ پتہٕ آز ژوٗرِم ڈایریکٹر صٲبس طاریق صٲبس تٔمۍ لیکھ أمِس تۄہہِ کاغذ کہ وِدِن 10 days اَسہِ رپورٹ أمۍ سُنٛد بلکہ یہِ أمِس دیُت نہٕ کینٛہہ مےٚ سۭتۍ چھِ یِوان محمد امین بٹ سون آف محمد عبداللہ بٹ پاپچان بانڈی پورہ یہِ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ یِمے کاغذ یہِ چھِ اَمہِ ساتہٕ آسان ڈیٹ 8/8/2018 بلکہ بہٕ چھُس أمِس پرٛزَنٛٹ نوکری اَتہِ کران أمۍ سُنٛد ناو آو اَتھ منٛز تھاونہٕ لِسٹَس منٛز بلکہ میون ناو آسہِ ژَٹنہٕ بیٛاکھ چھُ مہراج الدیٖن مہراج احمد کھانڈے یُس حظ کہِ وَٹہٕ پوریُک چھُ تہٕ سُہ تہِ آو اَتھ منٛز کھالنہٕ بیٛاکھ چھُ نظام صٲب بابتھر پِتٕر بوے تٔمۍ سُنٛد سُہ آو 2018 منٛز سُہ گوٚو ریگیوٗلر تہِ تٔمِس تنخواہ وٕنکٮ۪ن کنٹِنیوٗ نیران برابر کہ 12 تنخواہ نیران کہ تٔمِس سپٲرۍ پُلٹِکل آپریٹ تٔمِس نِش کہ مےٚ نِش اوس نہٕ کانٛہہ آپریٹ کینٛہہ بہٕ آوُس تَوَے ترٛاونہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرے مےٚ ڈی سی صٲبَس تہِ ایپلِکیشن تہٕ ڈی سی صٲبَس سۭتۍ لیوٗکھ کہ أمۍ رپورٹ أمِس ڈِپٹی صٲبَس ییٚلہِ نہٕ کہ أمۍ رپورٹ کٲنٛسہِ سوٗز آز تامَتھ MLA بانڈی پورہ تہِ گوٚوُس بہٕ راتھ عثمان صٲبَس تٔمۍ ووٚن أمِس کہ مےٚ دِسا أمۍ سُنٛد رپورٹ مےٚ ترٛاو سا وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ ترٛوو أمۍ رپورٹ سُہ کہ فراڈ سٲلِم کینٛہہ یُس یہِ لِسٹ چھُ وٕنکٮ۪ن بنیومُت یَتھ منٛز چھُ بالکل یہِ چھُ سٲلِم فراڈ یَتھ منٛز چھِ مُلٲزِم شُرۍ آمٕتۍ تھاونہٕ یِم تٔمِس أمِس سۭتۍ چھِ وٕنکٮ۪ن ڈایریکٹر آفِس ایمپلاے تِہِنٛدۍ شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ ناو چھِ اَتھ منٛز تھاونہٕ کہ بہٕ ہسا اوسُس اَمہِ وجوٗہات کِنۍ ترٛاونہٕ کہ مےٚ نِش رۄپیہِ 10 درٛاے نہٕ مےٚ نِش کینٛہہ بہٕ اوسُس غُربتَس منٛز تَوَے یِم لٔڑکہٕ گٔے تِمن اوس پُلٹِکل آپریٹ نذیٖر صٲبُن نذیٖر گُریز ڈِپٹی سپیٖکر چھِ تٔمِس سۭتۍ چھِ 18 لٔڑکہٕ اَتھ منٛز یِوان تِمن اوس سپٲری تِمن اوس رۄپَے تِم گٔے تمہِ پَتہٕ چھِ مطلب یِم تہِ مُلٲزِم چھِ اَتہِ تِہِنٛدۍ شُرۍ اِنچارج تِہِنٛدۍ شُرۍ آیہِ تھاونہٕ اَتھ منٛز مےٚ نِش درٛاے نہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ بہٕ ترٛووہَس بہٕ ڈراپَس بہٕ آوُس ڈراپ کرنہٕ تمہِ پَتہٕ یِمن پُلٹِکل آپریٹ پٔکۍ کِنۍ ہر کٲنٛسہِ پُلٹِکل آپریٹ پٔکۍ کِنۍ اَسہِ چھِ ییٚتہِ گُلشن محمد سُدرگُڑ پایِن روزان تٔمِس گٔے پٔتِم 8 ؤری گٔے تٔمِس بریک
سُہ آو اَتھ منٛز کھالنہٕ تٔمِس اوس اَپروچ حظ کہِ یہِ فلوریکلچرُک اوس ڈایریکٹر اَتہِ سُہ چھُ أمِس یار حظ سٲنِس ڈپٹی صٲبَس حظ خۄرشیٖد صٲبَس حظ تٔمۍ کوٚر تٔمِس فون حظ سُہ آو تَمی وجہ کِنۍ کھالنہٕ حظ تٔمۍ سُنٛد ناو تہِ ووٚنمُت تَتھ سر چھِ یَتھ منٛز بٔرِتھ حظ یہِ چھُ آمُت یہِ چھُ أمِس چھِ ہاوان سر 2008 پٮ۪ٹھ حظ بلکہِ یہِ چھِ 2010 پَتہٕ کُن چھِ یہِ گوٚوٕے حظ برابر 8 ؤری چھِ بریک حظ سر یُس حظ محمد امیٖن چھِ أمِس چھِ 5 ؤری بریک حظ یُس یہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ حظ مہراج الدیٖن کھانڈے حظ أمِس چھِ 5 ؤری بریک حظ اگر ہسا یِم سٲلِم آیہِ کھالنہٕ حظ بہٕ کیٛاہ آوُس نہٕ کھالنہٕ کینٛہہ حظ مےٚ کیٛاہ چھُ میون حق کیٛاہ اَتھ ہڑپ کرنہٕ حظ مےٚ دِیِو فٔردَر حق حظ اگر نہٕ بہٕ چھُس تیٚلہِ غلط وَتھ اختیار کرنس مجبوٗر حظ शबीर अहमद का भाई जो कि ऑटो चलाकर अपने और कभी कभी शबीर अहमद के अहल वयाल की भी मदद कर रहे हैं, इस कहानी को कैसे देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। ऑनलाइन कहीं अम लिस्ट मज नाव कोर खत्म अमिस 3 बच्चे वनकस खुदा साहब यह नश खेवान चेन यह बाजे अमिस वनकस कापी कलम बच्चे पल पोशाक सोरे पकनावान अमिस शड़ वर कह चार यह मलिस माज बेन बायन नश अलग बस गुजारिश करान तमाम डिपार्टमेंटस अम सुंद हक दियो फटाफट थोड़ी तौर वापस इंसाफ मंगान खास कर गवर्नर साहबस अमिस दियो पन हक तलब वापस क्योंकि ये वनकस मान तेल वनकस यूत गसान खून खराबी अमे पॉइंट मतलब सान गरीब बायन आय कर तेल गसान नौजवान वनकस मजबूर बंदूक तुलन खतर बस गवर्नरस अपील करान दिन अमिस बरदरस हक पन वापस इंसाफ दिन इंसाफ मंगान सिर्फ इंसाफ मंगान शबीर अहमद का बुनियादी सवाल कि वो लिस्ट में क्यों नहीं हैं और इसके ज़रिए से उठाए गए दीगर कई सवालात जब हमने SDO या सेरीकल्चर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पीरज़ादा खुर्शीद अहमद के सामने रखे तो बुनियादी सवाल और इससे मुतल्लिक कई सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते कई और सवालात ने जन्म लिया जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लिस्ट आपने ऑनलाइन किया है जी, उसमें पहले ये बताइए कितनी तादाद है, उसमें कितने आदमियों का नाम आपने? एक्चुअली हमने कोई ऑनलाइन नहीं किया है। ऑनलाइन 2015 के बाद बंद है। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2015 3 मार्च 2015 में जिन्होंने बैन लगाया है, ब्लैंकेट बैन, हमने कोई ऑनलाइन जो था उस वक्त जो भी लेबर था उनका हमने ऑनलाइन कर दिया। तो कितने आदमी हैं उसमें? हमारे इस वक्त 40। उसके हवाले से कई कंप्लेंट्स आई है जी, कुछ जो 2009 से काम कर रहे हैं, हाँ जी, उनको ड्रॉप किया गया है जी सर, और जो बहुत कम अरसे से काम कर रहे हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। जी। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? 2009 में जो होगा तो वो उसका तो आना चाहिए क्योंकि वो 2009 का था। 2015 में ब्लैंकेट बैन है, वो तो 2009 में आ सकता है। अब यह है कि मैं 2018 में आया क्योंकि 2015 में तो ये ब्लैंकेट बैन हो गया और आधार लिंक खत्म हो गया। इसके बगैर अगर 2009 का कोई भी बंदा पड़ा हुआ है, अगर वो कंटिन्यू काम कर रहा है तो हमें कोई हर्ज नहीं है उसको इसको काम पे लगाने के लिए, बशर्ते कि वो मेरे पास आए, हम उसको देखेंगे। मगर लिस्ट में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनका बहुत ब्रेक आया है बीच में, फिर भी वो लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ब्रेक की बात नहीं है, ब्रेक एक्चुअली हमें ये देखना है कि ये 2015 से पहले है या नहीं है। हमारा ब्रेक मैं वही कह रहा हूँ जो 2009 में यहाँ पे आया है एज कैजुअल, वो तो 2015 से पहले ही आया, यानी 6 साल तब तक मैं वही कह रहा हूँ कि हम 2015 में अगर वो यहाँ था, लिंक क्यों नहीं हुआ? हो सकता है वहाँ पर कुछ टेक्निकल स्नैक्स होगा। नहीं, अगर टेक्निकल स्नैक होगा तो वो कई बार आपके पास आया, उसने कई अप्रोच भी किए हैं, तो उसे टेक्निकल स्नैक नहीं कहेंगे या नहीं? एक्चुअली 2015 के बाद वो मेरे पास 2019 में भी आ गया, लेकिन 2019 में ये प्रॉब्लम थी कि मैं उसको लिंक नहीं कर सकता हूँ। मगर उसने 2009 से काम किया था, यानी 2015 से नहीं, पहले वो लिंक उसके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। वही मैं कह रहा हूँ वो चाहता था कि मुझे लिंक कर दीजिए इस ऑनलाइन लिंक में, लेकिन मैं ऑनलाइन लिंक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर दिया इसको। किया ना 2015 के बाद जो कैजुअल आए हैं उनको बंद किया है। मैं बात उस शख्स की कह रहा हूँ जो 2009 में आपके यहाँ काम कर रहा है, उसके पास रिकॉर्ड भी है, सारा कुछ है जी। तो उसको आप 2015 के बाद के वाले लिस्ट में कैसे डाल सकते हैं? 2015 के बाद नहीं, आप समझ नहीं रहे। मेरा काम है, अगर वो 2009 में है, मेरा उसका 2015 में लिस्ट में आना चाहिए। अगर वो वर्किंग यहाँ करता, अब ये बात नहीं, कोई 2000 में आया, फिर 2005 में आ गया, और फिर वो 15 में जब लिंक था वो नहीं आया, वो ड्रॉप हो गया।
लिंक कुछ ही दिन उन दिनों हुआ करता था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ उस लड़के से, क्या हुआ या उस मगर लेबर क्या का क्या आपको हुआ। उस आदमी की इंफॉर्मेशन नहीं है जो 6 साल से आपके महकमे में काम कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो 2 दिन यहाँ गैर हाजिर रहा या 10 दिन यहाँ गैर हाजिर रहा, जिस दिन आप ऑनलाइन करते थे उस वजह से आप उसको भूल ही गए? नहीं, जो डायरेक्टर के पास उसके पास चले गए थे, उन्होंने डायरेक्टर के साथ वहाँ पर उन्होंने वहाँ से एप्लीकेशन मूव की, मैंने एप्लीकेशन मूव करके उसको फेवर कर दिया। मेरे पास लेटर भी है जो मैंने डायरेक्टर को कहा कि ये 2015 से पहले लगा हुआ है, ये चाहता है री एंगेजमेंट, और मैं मेहरबानी करके हमें नहीं, वो री एंगेजमेंट नहीं चाहता है, वो कहता है कि अगर 40 आदमियों का लिस्ट बना जी, उसमें वो नाम भी है जो उसके बाद 4 साल आए, 2012 का भी उसमें जी शामिल हो हाँ, गया, 2010 में भी आया। 2010 का 2012 सही का बात भी है, सही बात वो शामिल हो गया, 2009 वाला क्यों नहीं हो गया? वो उसका re-engagement मुझे नहीं चाहता, इल्मियत नहीं है। उसका क्वेश्चन ये है कि मेरा मेरा लिस्ट नाम में इस क्यों लिस्ट में क्यों नहीं, अगर मैं उस हिसाब से बहुत सीनियर हूँ, ना वो 16 में था, ना 17 में था, ना 18 में मगर था। उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से उसके, ये जो उसकी पेमेंट तनख्वाह- अगर हो गई हो मुझे दिखाइए। पेमेंट की पेमेंट भी इससे उसकी भी हाँ, उसकी- अगर उसका 16 की हो गई, 18 अगर 17 में हो गई, 18 में हो गई, आप दिखाइए, मुझे प्रूव कर दीजिए। जिन ईयर्स का आपने जिक्र किया उसके पास वो तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी है, नहीं, वो तो प्रूव करते हैं, वो प्रूव करते हैं 2015 तक था। वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, जो रिकॉर्ड यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड है उस यानी हिसाब ये आप मानते हैं कि 2009 से लेके 2015 तक वो यहाँ पे था, बीच में था। यस, बीच में तो बहुत बिफोर सारे- ब्लैंकेट बैन था। सारे लोग हैं वो बीच में आए, कोई किसी ने कंटिन्यू नहीं किया है काम। नहीं, मेरी बात सुनो ना। अब वो लिस्ट में क्यों नहीं आया? वो 2015 जो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हुआ करता था, क्योंकि जहां तक रिकॉर्ड की बात है उसने 2-3 महीने 2015 में भी किया था, लेकिन जब लिंक हुआ था मेरे उस वक्त कोई पैसा इसके नाम पे नहीं निकला है। मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर वो 10 दिन गैर हाजिर रहा जबकि बाकी भी रहे होना चाहिए था, जबकि बाकी भी रहे हैं जी, तो वो जो उसने 6 साल आपके यहाँ महकमे में गुजारे वो क्या जाया हो गए उस 10 दिन? ना, हम उसको ये कह रहे हैं कि लिंक नहीं हो सकता है। आधार के बगैर भी हमारे कुछ लड़के हैं जो हम काम कर रहे हैं, उसको मैंने बुलाया। आप मेरी बात सुनिए, आधार लिंक तो खत्म हो गया अपने ये 2015 में। उसके बाद मेरे पास कुछ लड़के आए जिन्होंने वाकई जैसे ये भी कहा, मैंने इसको कहा था आजा काम पे, लेकिन ही हैज नॉट रिपोर्टेड द वर्क, क्योंकि ये मेरे पास इंचार्ज बैठे हैं। इन्होंने कभी उसने कई बार आपके ऑफिस अप्रोच किया है, वो एडवाइजर के पास भी गया है, जी, वो साबिक एमएलए के पास भी गया है, वो डायरेक्टर के ऑफिस भी गया है। अगर टेक्निकल मसला होता या उस दिन 10 दिन की महज गैर हाजिरी होती तो आज तक वो होना चाहिए था, नहीं हुआ। वजह क्या हो सकती है? मुझे उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि 2015 का मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पास वो आया, मैंने उसको कहा काम कर लो, लेकिन ही हैज नॉट रिपोर्टेड टू वर्क। यहाँ पर इंचार्ज है, आप इंचार्ज से भी पूछ लीजिए। ये हमारा यहाँ पर है, ये कभी आया है? शबीर लोन को मैंने भेजा था, नहीं आया। अच्छा, ये शबीर लोन आपके पास भेजा था, कितने दिन बैठा था फिर चला गया? 3 दिन। नहीं, मैं बताऊंगा जी सर। उन्होंने डायरेक्टर से अप्रोच किया जी सर। उससे पहले वो यहाँ आया कई बार, उसके बाद डायरेक्टर को अप्रोच किया, डायरेक्टर ने आपको डिटेल रिपोर्ट लिखने के लिए भेजा, जी भेज दिया। वो जो डिटेल रिपोर्ट क्या आपने भेजा है यहाँ से? जी सर, 11 नवंबर में भी भेजा, दिसंबर में भी भेजा। सवाल यहाँ पे वही फिर से पैदा होता, आपने उसमें दिखाया कि ये गैर हाजिर रहा, जो फाइनल जो एक्चुअली ये फाइनेंशियल पेपर होता है। गैर हाजिरी उसी की नहीं है, बाकी जो कैजुअल है उनकी भी है। उनके लिए वो क्यों नहीं, वो रीजन क्यों नहीं बना जबकि इस एक के लिए बना? वाहिद एक। देखिए, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हमारी डायरेक्टर होती है, मैंने लिखा, यही से करते हैं ना आप। मैं तो लिख रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा वही उनको भी लिखा। सेम देखिए, फाइनेंशियल पेपर हमारा जो वेजेस होता है ना, आउटसोर्स एंड वेजेस, हम फाइनेंशियल पेपर थ्रू डीबीटी मोड चलाते हैं। पहले कैश हुआ करता 2015 से पहले, फिर उसके बाद डीबीटी मोड हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वो जेके बैंक थ्रू से हम उसके ये क्या कहते हैं अकाउंट होल्डर होता है, उसको हम एडवाइस के थ्रू से तनख्वाह देते हैं। अब जो फाइनेंशियल पेपर होगा, जिस हिसाब से हमने वहाँ से तनख्वाह निकाला, उसी हिसाब से मैं रिपोर्ट भी दे दूंगा। मैं कैसे विदाउट फाइनेंशियल पेपर? उसके पास डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करते हैं। नहीं, अगर डॉक्यूमेंट, वही भी कह रहा हूँ ना, मेरे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास है ना। आप अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसके पास है, हो सकता है मैंने देखा सारा, वहां पर है नहीं उसका नाम।
न 2018 में है न 2019 में है जो हमने निकाला, हालांकि मैंने उसको बताया भी थे। आप खुद ही कह रहे हैं 2015 तक है जो यहाँ पे काम करते है उसने किया है, वो डॉक्यूमेंट्स उसके होना चाहिए था, होना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो होना चाहिए था आधार लिंक के साथ। वही हमारा सवाल भी है। मैं तो उस वक्त था ही नहीं ना, आई वॉज नॉट हियर। आपने आधार लिंक नहीं किया है किसी नहीं, मैंने किसी का आधार, मैं 2015 की बात कह रहे हो, मैं 2018-19 पे आ गया। इसी लिस्ट के हवाले से हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग टॉपिक है, वो कभी और जी सर कोई बात करेंगे, कोई बात नहीं। इसी लिस्ट के हवाले से ये भी कंप्लेंट्स आई है कि जो यहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे हैं जी, उनके बेटे भी उसमें शामिल हैं, उनके बच्चे भी शामिल हैं। देखिए कितने हैं वो, मैं बताता हूँ। हमने इस साल हमारा अप्रैल में हमारा सीनियर असिस्टेंट मुश्ताक अहमद गनई हुआ करता था, वो रिटायर हो गया। अब यहाँ पर कंप्यूटर चलाने के लिए हमने एक आदमी को रखा, ही वॉज कंप्यूटर नोइंग, हम उसको कंसल्टेटेड 3,000 रुपये देते हैं, वो पूरा 1 महीना काम करता है। हम उसको कंसल्टेटेड बीच बीच में लाके उसको पैसे देते हैं कि इसलिए कि वो लिस्ट में नहीं है। ना कोई है, एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते थे? नहीं, एक्चुअली इट्स ए टेम्परेरी फेज, वो कहीं पर नहीं जाएगा। ही इज ग्रेजुएट, वो अपना रोजगार तो बहुत सारे पीएचडी भी बाहर, वो वही कर रहा है, पीएचडी भी बाहर बैठे। मुझे कोई बात नहीं है, मैंने डीसी साहब से अप्रोच किया था, मैंने उनको कहा था कि एनआईसी से मुझे कोई आदमी दीजिए ताकि मेरा ये जो ऑफिस है फंक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली डीसी साहब ने कहा नहीं मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अलॉट किया है डिफरेंट ऑफिस को। अब ये काम चलाने के लिए मैंने कोई आदमी रखा है, ये जरूरी नहीं है। सीधी बात, जो मुलाजिम है यहाँ पे उसने अपने बेटे उसका तो कोई वो तो परमिट नहीं हो जाएगा। ही इज नॉट इन अ परमिट, बट ही इज इन द लिस्ट। वो पैसा निकालने के लिए, क्योंकि वो नहीं निकल सकता है, उसका भाई यहाँ काम करता, वो काम करता था पहले 2015 से पहले काम करता। किन पैसों की निकालने की बात कर रहे हैं? मैं ये 2015 की पहले वो काम करते थे, वो काम पहले भी करता था लेबर। But somehow he came in the list. He will not be regularized. We have already dropped him. तो बिना नोटिफिकेशन के आपने उसको रखा है? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, कोई भी हम हायर कर सकते हैं फॉर टेम्परेरी पर्पस। हम कहते हैं कि चलो, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि मेरे पास आदमी नहीं है, मैं फंक्शन नहीं कर सकता हूँ, कंप्यूटर के लिए कोई ना कोई मुझे चाहिए। ही इज़ नॉट, क्योंकि ये अपना जॉब के लिए, ही इज़ नॉट बीइंग नीदर परमानेंट नॉर ट्रूथ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जैसे ही कलर रखाएगा विल शट हिम आउट। But he is in the list. कल Which वो list? क्लेम कर सकता नहीं कर सकता है। same casual list, his name is in that list. कल को वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में। वो 2015 से पहले भी है ना। जब बाकी लोग परमानेंट हो जाएंगे, रेगुलर किसी भी टाइम हो जाएंगे, वो 120 कोर्ट में जाएगा, आपको ये करेगा कि मेरा नाम भी लिस्ट में था, वो क्यों ड्रॉप किया गया? 120 महीने जो है ना, 120 महीने इनको चाहिए रेगुलराइज करने के लिए। ये 5 महीने के लिए है, इसको हम छुट्टी कर देंगे, विंटर हो गया छुट्टी, अब ये नहीं आ सकता है। इसके बाद हमारा 120 महीना कहाँ से आ गया? लिस्ट में कैसे आ गया वो? ही विल बी ड्रॉप्ड ना फॉर द टाइम। मैं 3-4 महीने के लिए मैंने रखा है उसको पैसा निकालने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं वो तो ठीक बात है, वो आपने हायर्ड, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे पास वेजेस ओब्लिक आउटसोर्स होता है, वो आपने वेजेस होता है, हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय लेबर होता है जो 91 से है। हमारा एक ही आदमी है वेजेस जो निकलता है, उसका नाम है अब्दुल मजीद डार, जो 87 से यहाँ काम करता है, उसका सैंक्शन भी आता है वो वेजेस। दूसरा आता है आउटसोर्स हम हायर्ड लेबर को भी कर सकते हैं, किसी को भी लेके कर सकते हैं 1 महीने के लिए। जैसे हमारा रियरिंग है, सिलिक वर्म रियरिंग यहाँ पर हमारे लिए रियरिंग में आदमी लगते हैं, हम किसी को भी कहेंगे चलो 225 में काम कर लीजिए, हम 15 दिन कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने से कर रहे हैं। 3 महीने से कंसोलिडेटेड बेस पे है, ठीक है, वहाँ तक आपकी अथॉरिटी है कि आप किसी को रख सकते हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि लिस्ट में उसका नाम कैसे आया, और जो 2009 से काम कर रहा है उसका ड्रॉप हो गया, छोड़िए उस पर हमने बात की, ये कैसे लिस्ट में आ गया? जो 3 महीने से काम कर रहा है। देखिए हायर्ड लेबर हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। हायर्ड इज नॉट फॉर रेगुलराइज पर्सन। और जब हम हायर्ड करते हैं 2015 से पहले यहाँ काम करता था, और ये इसको बहुत ही कम टाइम हो गया यहाँ पे, यानी 2015 के बाद आया। ये 2015 से पहले है, ठीक है। ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी यहाँ काम कर रहा है एज ए कंप्यूटर, ये 2015 से पहले काम कर रहा है। ठीक, ये ब्लैंकेट बैन से पहले हम नहीं लगा सकते। मैंने आपको पहले ही कहा 2015 के बाद
किसी आदमी को हम नहीं लगा सकते, किसी लेबर को। ये 2015 से काम करता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है 2000 मार्च 2015 के बाद, ये 2015 से काम कर रहा है। उसे काम कर रहा है, मगर लिस्ट में तो नाम आ गए ना। अब सर विदाउट कोई एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन्स हु आर वेल क्वालिफाइड, एक बंदा खुद ही घर से उठा के एक अपने बेटे को लाता है और यहाँ पे रखता है। एक सवाल इस पे भी बात हो गई। अब तीसरा सवाल ये है कि गुरेज में वहाँ पर हमारे 4 फार्म्स है, एक नर्सरी है, वहाँ पर 5 मुलाजिम काम कर रहे हैं। उसके बाद वो 2010 में वहाँ पर लेबर वहाँ पर क्योंकि मुलाजिम रिटायर हो गए थे, उस दिन उस वक्त डायरेक्टर साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब ने मिनिस्टर के कहने से वहाँ पर उन्होंने 10 आदमी को एंगेज किया इन 2010। वहाँ पर 4 फार्म्स है, एक नर्सरी वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पर 5 आदमी की तनख्वाह इस एस्टेब्लिशमेंट निकल रही है और वो इंडक्शन हो गई है 2010 में। गुरेज की बात, गुरेज की बात, जितना टाइम आपको यहाँ पे हो गया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस चीज़ को चेक करने की कि क्या जो फाइनल लिस्ट आपने भेजा है उसमें क्या सही बंदे हैं कि नहीं? हो सकता है, मैं दोबारा देखूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर कोई गलती हुई वी विल ट्राई टू रिड्रेस दैट, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई मसला नहीं है। ये कोई ऊपर से हुक्म नहीं आया जैसे कुरान की, ये तो इंसान की गलती हो सकती है कहीं पर। मैं आई विल सी इट, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम वी विल टेक इट केयर एंड आई विल ड्रॉप इट। wherever कहीं पर नाइंसाफी कहीं पर होगी, आई विल सी इट एंड आई विल मेक इट रेक्टिफाइड। मैं तो इसको रेक्टिफाई कर। चलिए, आपका शुक्रिया। इन्हीं सवालात का जवाब न मिलने के बायस शबीर अहमद नाउमीद हो चुके हैं। नाजरीन, हमने आपके सामने दोनों पहलू रखे और ये कहने की कोशिश की कि शबीर अहमद ने कसम पुरसी बर्दाश्त करके इस महकमे में महज 9 साल इसलिए गुजारे कि कभी न कभी सब्र का फल उससे ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शबीर अहमद की तरह बड़ी कोशिशों के बावजूद बुनियादी सवाल का हतमी जवाब अभी ढूंढना बाकी है। रौनक टाइम्स के लिए गुरूरा बांडीपुरा से बिलाल रहमानी की रिपोर्ट।